CA final for direct taxation if you are going to appear in September 2025. So if you observe the pattern, then charitable trust means to say कि the entire taxation of trust, whether it is charitable or the exit trust, it consists of how many marks? It consists of 10 marks for sure. तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं if you know the charitable trust properly. If you manage your charitable trust well for your examination, then 10 marks is directly in your pocket. If you observe from May 25, from November 24, from May 24, from May 23, November 22, तो there is मतलब 8 marks का तो for sure था ही. बट जैसे ही MCQ आया उसके साथ साथ तो ये क्या हो गया है कि along with MCQ, तो now 2 marks का MCQ आता है इन चैरिटेबल और मे बी एग्जिट ट्रस्ट कहीं से भी, मतलब 2 marks का शॉर्ट MCQ आता है एंड द रिमेनिंग पार्ट कम्स फ्रॉम दी चैरिटेबल ट्रस्ट, और मतलब कहीं से भी टोटल 10 marks का आता है. So in this one we are going to recall the things to the extent we can. So almost सारी चीजें यही लर्न हो जाए. I am referring my faculty book notes for reference as well as for ICS study material. But in this, we will try only to recall to the extent we can. So, charitable purpose is means. Charitable purpose means, पहले इसके definition में includes था, but now it is means. As per section 2 clause 15, charitable purpose means relief of poor, medical relief, education, yoga से ही होगा, preservation of monument, places, object of artistic or historic interest, preservation of environment, advancement of any other object of general public utility. So in this, what I am trying to say that charitable purpose क्या है? Relief of poor, medical relief, of poor, medical relief, education, yoga, advancement of any other object of general public utility. जहाँ पे एक condition है वो हम अभी फर्दर पढ़ेंगे. उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट. तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 पॉइंट्स है टू रिकॉल. वंस अगेन, चैरिटेबल पर्पस यानी कि रिलीफ ऑफ पुअर, मेडिकल रिलीफ, preservation of environment, preservation of ancient historic monuments, education, yoga, and advancement of any other object of general public utility. Advancement of any other object of general public utility if it involves any activity जो कि related है, अगर इसमें कोई भी activity जो कि related होती है trade से, commerce से, business से, is a charitable purpose only if aggregate receipt from the business activity not more than, तो हम इसे काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ तभी, not more than 20% of total receipt से, मतलब 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जो ट्रेड बिजनेस और जो उसके ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस से 20% से ज्यादा की रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए, तो ही ये चैरिटेबल पर्पस में आएगा. इफ इट एक्सीड 20% से अगर ज्यादा हो जाता है तो एग्जाम्पशन विल बी डिनाइड फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर में, एग्जाम्पशन और डिनाइड हो जाएगी एंड रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कैंसिल. रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा बट एग्जाम्पशन जो है वो डिनाइड हो जाएगी. उसके बाद then moving further, that is there is section 11 to section 13. section 11(1) income of trust. section 11(1) income of trust क्या बोलता है? basically what does section 11? section 11 income of trust, following income of trust are exempt. section 11(1) के अंदर ये वाली इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है. कॉर्पस डोनेशन एग्जाम्प्ट ओनली इफ इन्वेस्टेड इन 11(5) के सेफ मोड्स. कॉर्पस डोनेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको ये कॉर्पस डोनेशन दिया है, आपको इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसे जो है इन्वेस्ट करना है, इस पर्पस के लिए ही आपको इन्वेस्ट करना है. तो अगर आपने 11(5) के सेफ मोड्स में और कॉर्पस डोनेशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए किया है तो आपको कॉर्पस डोनेशन 100% अलाउ है. उसके बाद 15% ऑफ ग्रॉस इनकम, जो भी आपकी ग्रॉस इनकम आएगी, यानी कि ये सारा मतलब जैसे जितना भी आपका टोटल बनेगा उसमें से आप कॉर्पस डोनेशन डिडक्ट करोगे, उसके बाद 15% ऑफ ग्रॉस इनकम की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी. उसके बाद इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया फ्रॉम रिमेनिंग 85%. आपने जितना भी वो जो बचा हुआ 85% का आपका इनकम का पोर्शन बचेगा, उस 85% को अगर आपने जो इनकम को अप्लाई किया है फॉर चैरिटेबल पर्पस तो आपको उसको फर्दर डिडक्शन मिल जाएगी. तो 11(1) में क्या आता है? कॉर्पस डोनेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आपने उसे इन्वेस्ट किया
11(5) के सेफ मोड्स में 15% ऑफ ग्रॉस इनकम आपको मिलने वाली है एंड इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया फ्रॉम द रिमेनिंग 85% पोर्शन। अप्लाइड मीन्स, अप्लाइड में क्या आता है, कॉर्पस डोनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अप्लाइड। अप्लाइड कॉर्पस डोनेशन जो है वो अप्लाइड में नहीं आएगा। कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कॉर्पस डोनेशन जो है इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। कॉर्पस डोनेशन आपको 100% मिल जाता है, तो कॉर्पस डोनेशन जो है वो अप्लाइड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अप्लाइड यानी कि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, आपने डोनेशन किया है टू अदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, 12AB, 1023C। अगर आपने डोनेशन किया है दूसरे किसी ट्रस्ट को जो कि रजिस्टर्ड था अंडर सेक्शन 12AA, 12AB और 1023C में, एंड आपने क्या किया है, एंड फर्दर व्हाट यू हैव डू दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर एक्विजिशन और कैपिटल एसेट्स। अगर आपने रीपेमेंट किया है, अगर आपने क्या किया है, अगर आपने रीपेमेंट किया है, अगर आपने रीपेमेंट किया है लोन टेकन, जो भी आपने लोन लिया था फॉर कैपिटल एक्विजिशन के लिए, कैपिटल एसेट्स के लिए, फॉर एक्विजिशन और कैपिटल एसेट्स के लिए, तो हम उसे कंसिडर करेंगे। कॉस्ट ऑफ असेट टेकन इन अप्लाइड, कॉस्ट ऑफ असेट टेकन, देन डेप्रिसिएशन विल नॉट बी टेकन इन अप्लाइड। जब आपने ऑलरेडी ये चीजें ले ली है, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया, तो अब आप अगर अलग से डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं कर सकते। अमाउंट डोनेटेड बाय ट्रस्ट विल बी ट्रीटेड, सिर्फ 85% जो अमाउंट डोनेट किया है वो ही ट्रीट किया जाएगा एज अ एप्लीकेशन, क्योंकि 15% की तो आपको ऑलरेडी डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो 85% है, उसके बाद आपने कितना कितना खर्चा किया आप उसे दिखाइए एंड यू विल गेट द 85% एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इफ ट्रस्ट इज डोनेटेड 50,000 अमाउंट ट्रीटेड एज अप्लाई विल बी। अगर क्या होता है कि जैसे कि एक ट्रस्ट जो है वो डोनेट करता है, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट, जब आप डोनेट करते हैं दूसरे ट्रस्ट को, तो इफ ट्रस्ट हैज डोनेटेड 50,000 अमाउंट इज ट्रीटेड एज अप्लाई विल बी। ट्रस्ट डोनेट करता है कोई अमाउंट, तो उसका सिर्फ 85% ही कंसिडर किया जाएगा। 85% हम क्या बोलते हैं कि उसका सिर्फ 85% ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे फॉर सपोज 50,000 का 85%, तो दैट यू विल कंसिडर। उसके बाद इट इज क्लैरिफाइड दैट 15% ऑफ सच डोनेशन बाय द डोनर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड, और जो 15% है उसको आपको अलग से इन्वेस्ट नहीं करना है 11(5) के सेफ मोड्स में, एज एंटायर अमाउंट ऑफ 50,000 हैज बीन डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एंड इज अकॉर्डिंगली एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर द फर्स्ट रीजन। उसके बाद हम तो अगर आप किसी और ट्रस्ट को डोनेट करते हो तो ओनली 85% ही उसको हम कंसिडर करेंगे। फर्दर आप जब क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आपको वो चीजें आने लगेगी। उसके बाद हम बोलते हैं कि 40A टीडीएस अगर नॉट डिडक्टेड, अगर टीडीएस डिडक्ट होना था और अगर आपने उसे डिडक्ट नहीं किया है तो 30% जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था और अगर इन केस आपने डिडक्ट नहीं किया है तो 30% वुड बी डिसअलाउ। फिर 40A3 अगर आपने कैश पेमेंट किया है 10,000 से ज्यादा, अगर आपने कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा किया है, 40A3A इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रस्ट। अगर आपने कैश पेमेंट किया है मोर देन 10,000 ऑफ लास्ट ईयर, इफ एक्सपेंसेस डिसअलाउ इन दिस 3 सेक्शन इट विल नॉट बी टेकन इन अप्लाई। अगर इधर डिसअलाउ हो गया है तो फिर अप्लाई में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो 30% डिसअलाउ किया हो जाएगा। फिर कैश पेमेंट आपने 30,000 से ज्यादा किया, आई मीन 10,000 से ज्यादा किया है, या फिर मतलब 40A टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, 40A3 कैश पेमेंट एक्सीड किया है 10,000 से, 40A3A कैश पेमेंट ज्यादा किया है 10,000 से ऑफ लास्ट ईयर, तो ये डिसअलाउ हो जाएंगे, तो अप्लाइड में नहीं आएंगे। इफ 85% नॉट अप्लाइड देन इट कैन स्टिल बी टेकन इन अप्लाइड। अगर आपने 85% अप्लाई नहीं किए तो भी आप इसे अप्लाई में मान सकते हैं। कैसे? अगर आपका आउटस्टैंडिंग trust will give declaration to AO that the amount is still outstanding. If 85% not apply, it can still be taken in apply. अगर आपका 85% suppose आपके पास 85% आप उसको इतनी इनकम दिखाकर वो कर सकते थे, बट अगर आपका 85% अभी तक अप्लाइड में नहीं दिख रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो ट्रस्ट जो है वो डिक्लेरेशन देगा एओ को कि जो अमाउंट है वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, देन शुड सबमिट करेंगे 2 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग डेट। आपको अगर आपका जो अमाउंट है वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, आप मतलब आप उसे अप्लाई नहीं कर पाए हो, तो आप क्या करोगे, एओ को रिक्वेस्ट करोगे और उसके बाद आप 2 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आपको सबमिट करना होगा। टू मंथ आपको सबमिट करना होगा 2 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। assessor will apply when received when in the year of receipt
या फिर नेक्स्ट ईयर आफ्टर रिसिप्ट, या तो जिस ईयर में वो रिसिप्ट होती है या फिर नेक्स्ट ईयर आफ्टर रिसिप्ट. इफ नॉट अप्लाई, it will become income of this year. Any other reason, SSC will give declaration to AO that we will apply next previous year, should submit 2 months prior to the due date of written filing date. If not applied, it will become income of next previous year. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है that is explanation 3A which is added by the Finance Act 22, यानी कि विद असेसमेंट ईयर 21-22 से ये हमारा एक्सप्लेनेशन 3A ऐड हुआ था. सो बेसिकली हमारा एक्सप्लेनेशन 3 है. हमारा एक्सप्लेनेशन 3A जो कि ऐड हुआ था विद द फाइनेंस एक्ट 22 असेसमेंट ईयर 21-22 से ये क्या बात करता है, इफ ट्रस्ट इज हैविंग एनी टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और एनी प्लेस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80G2B. अगर एक्सप्लेनेशन 3 ये बोलता है अगर ट्रस्ट के पास कोई भी टेंपल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, चर्च है या फिर कोई भी प्लेस जो कि नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 80G2B एंड इट हैज रिसीव एनी डोनेशन फॉर रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ सच प्लेसेस, और अगर उसे कोई उसे रिसीव हुआ है कोई डोनेशन, रिपेयर, रेनोवेशन ऑफ सच प्लेसेस, देन सच अ डोनेशन मे बी treated by trust as corpus if following condition are satisfied. तो ये जो डोनेशन है उसे ट्रीट किया जाएगा बाय द ट्रस्ट एज कॉर्पस अगर वो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है. इट हैज रिसीव एनी डोनेशन, रिपेयर एंड रेनोवेशन, तो सच अमाउंट शुड बी अप्लाइड ओनली फॉर रिपेयर एंड रेनोवेशन. इसे कॉर्पस ट्रीट किया जाएगा अगर ये जो अमाउंट है वो सिर्फ रिपेयर और रेनोवेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है. सच अमाउंट शुड नॉट बी डोनेटेड टू एनी अदर पर्सन और ट्रस्ट. ये जो अमाउंट है वो डोनेट नहीं किया जाना चाहिए दूसरे पर्सन और ट्रस्ट को. सच कॉर्पस मस्ट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड. ये जो कॉर्पस है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए. सच अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड, डिपॉजिटेड इन द सेफ मोड्स, और ये डिपॉजिट होना चाहिए, इन्वेस्टेड होना चाहिए इन द सेफ मोड 11(5) के अकॉर्डिंग. तो एक्सप्लेनेशन 3A के अंदर 4 कंडीशन है कि जो अमाउंट है अप्लाइड होना चाहिए फॉर रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए, शुड नॉट बी डोनेटेड टू एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन और ट्रस्ट को आपको डोनेट नहीं करना है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए और मस्ट इन्वेस्टेड इन द 11(5) के सेफ मोड्स में ही इन्वेस्ट होना चाहिए. ये एक्सप्लेनेशन 3 हमें बताता है. फर्दर जैसे जैसे हम इस सेक्शन में मतलब इस चैप्टर में प्रोसीड करते हैं, तो इफ एनी कंडीशन मेंशन इन एक्सप्लेनेशन 3 अबव इज वायलेटेड, अगर सपोज कोई भी कंडीशन वायलेट हो जाती है, इन केस अगर हमें लग रहा है जैसे कि कोई भी कंडीशन वायलेट हो रही है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी कंडीशन जो है वायलेट हो रही है, देन सच अ सम शैल बी डीम्ड एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच वायलेशन टेक्स प्लेस. इफ एनी कंडीशन मेंशन इन एक्सप्लेनेशन 3 अबव इज वायलेटेड, अगर कोई भी कंडीशन वायलेट हुई है, देन सच अ सम शैल बी डीम्ड एज इनकम, तो उसे हम मानेंगे इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच वायलेशन हैज टेकन प्लेस. Explanation added section 11 by Finance Act 22 with effect assessment 22-23. Any sum payable by any trust or institution shall be considered as application of income. कोई भी अगर जैसे कि हम क्या बोलते हैं, कोई भी any sum payable by any trust, कोई भी जो ट्रस्ट है, I am hereby referring see यश खंडेलवाल sir notes as well as institute material weightage guidelines जो भी है, so that we can recall. You can also watch see Yash Khandelwal sir video. As a student, I am trying to recalling the same. So, any sum payable by any trust or institution shall be considered as application of income in the previous year in which trust has actually paid the sum. Method of accounting जो है वो irrelevant है, तो जब sum पे किया जाएगा उस year में ही consider किया जाएगा. However, where during any preceding previous year trust institution has already claimed any amount as application, but किसी preceding year में trust ने already claim कर लिया है कोई भी amount as a application, तो such a sum shall not be allowed as application again in the, ये एक्चुअली क्या है कि वो रीपेमेंट और लोन वाले केस में होता था. पहले तो अलग ट्रीटमेंट होता था, बट करंटली ये है कि हम रीपेमेंट जब करेंगे तब उसे हम मान लेंगे तो उसे अप्लाइड में दिखा देते हैं. So such a sum shall not be allowed as application again in any subsequent previous year based on actual payment due to this explanation. Then moving further, that is section 11(2). Exemption if income accumulated for specific purpose. हमें एग्जामिशन मिल जाएगी जैसे कि सपोज हमने इनकम को एक्यूमुलेट कर लिया फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. एसएससी विल टेल पीरियड एंड पर्पस टू एओ. एसएससी जो है वो बताएगा पीरियड क्या है एंड पर्पस क्या है. मैक्सिमम पीरियड जो है वो 5 years है. दिस अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड होना चाहिए इन द 11(5) के सेफ मोड्स में. दिस अमाउंट कैन नॉट बी डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट, को डोनेट नहीं हो सकता है. In 5-year period, if accumulated amount is not applied, it will become income of last year.
This amount cannot be donated to other trust. In 5-year period, if accumulated amount is not applied, then it will become income of the last year. सेक्शन 11(3), तो सेक्शन 11(2) एग्जाम्पशन मिल जाएगी अगर हमने अक्यूमुलेशन किया, इनकम को अक्यूमुलेट किया है फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सेक्शन 11(2) हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 11(2) हमें ये बताता है कि एग्जाम्पशन मिल जाएगी अगर आपने इनकम को अक्यूमुलेट किया है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आईसीसी बताएगा पीरियड एंड पर्पस क्या है। एओ को मैक्सिमम पीरियड जो है दैट विल बी 5 पीरियड। 5 पीरियड तक आपने जो भी इनकम अक्यूमुलेट कर रही है उसको यूटिलाइज कर लो, अदरवाइज फिर वो लैप्स हो जाएगा। दिस अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 11(5) के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स। दिस अमाउंट कैन नॉट बी डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट, दूसरे ट्रस्ट को दी नहीं जानी चाहिए। इन 5-year पीरियड इफ अक्यूमुलेटेड अमाउंट अगर नहीं अप्लाई हो जाएगी तो उसे कंसिडर किया जाएगा इनकम ऑफ लास्ट ईयर, कंसिडर कर दिया जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 11(1) क्या बोल रहा था। जब हमने सेक्शन 11(1) पढ़ा था तो हमें बताया था कि कौन सी इनकम जो है एग्जाम्प्ट है, जैसे कि कॉर्पस डोनेशन है, 15% का ग्रॉस इनकम पर डिडक्शन मिलने वाला है और 85% को हमें अप्लाई करना है। जब हमने 11(2) पढ़ा था तो 11(2) में एग्जाम्प्टेड हमें जो हमने अक्यूमुलेशन की इनकम वो एग्जाम्प्ट हो जाती है कब, अगर एसएससी जो है वो बता देगा विल टेल पीरियड एंड पर्पस क्या है एओ को। मैक्सिमम पीरियड जो है 5 years है। अमाउंट जो इन्वेस्ट होगा इन द 11(5) के सेफ मोड्स में, एंड दिस अमाउंट जो है वो डोनेट नहीं किया जाए दूसरे ट्रस्ट को। एंड उसके अलावा ये कि जो 5 साल है अगर वो लैब्स खत्म हो जाते हैं तो फिर वो जो इनकम है वो लास्ट ईयर की ट्रीट कर ली जाएगी। अब 11(3) पे आ जाते हैं। इफ दिस 11(3) इज वेरी इंपॉर्टेंट। If this amount is applied for any purpose other than the purpose for which it was accumulated, अगर ये जो अमाउंट है वो अप्लाई किया है किसी भी पर्पस से अदर देन द पर्पस फॉर विच इट वाज accumulated, जिस पर्पस के लिए उसे accumulate किया है, द अमाउंट विल बिकम द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज अप्लाई। तो अमाउंट जो है वो इनकम बन जाएगा जहाँ जब उसे अप्लाई। इफ दिस अमाउंट इज अप्लाई फॉर एनी पर्पस अदर देन द पर्पस फॉर विच इट वाज accumulated, अगर आप किसी अमाउंट को accumulate कर रहे हो और आप इसे क्या कर रहे हो, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो अमाउंट विल बिकम इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज अप्लाई। तो अमाउंट जो है वो इनकम बन जाएगा जब उसे अप्लाई किया जा रहा है। सेक्शन 13(9) एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11(2) विल नॉट बी गिवन इफ। सेक्शन 11(2) के अंदर एग्जाम्पशन नहीं दी जाएगी इफ स्टेटमेंट टू एओ इज नॉट गिवन एट लीस्ट 2 months prior to the due date of ROI. ROI not filed up to due date of ROI under section 139(1), 139(4), 139(8)(a). Section 11(4)(4)(a) business income of the trust. If business is incidental to the main object of the trust and separate books of account is maintained, exemption of 11(1) and 11(2) will be allowed. If business is incidental, अगर business जो है वो incidental to the main object जो है trust का, separate books of account is maintained, exemption of 11(1) and 11(2) will be allowed. If you find any concealed income, no exemption will be allowed. Such concealed income, whole concealed income will be taxable हो जाएगी। तो सेक्शन 11(4)(4)(a) बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट का, इफ बिजनेस इज इंसिडेंटल है टू द मेन ऑब्जेक्ट तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी 11(1) की जो भी एग्जाम्पशन थी कि अप्लाइड वगैरह, एंड 11(2) जो भी आपने अमाउंट अक्यूमुलेट किया है वो सारी एग्जाम्पशन। उसके बाद प्रोसीडिंग फर्दर दैट इज सेक्शन 11 नंबर 11 सबसेक्शन 7। इफ ट्रस्ट टैक्स एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन, अगर ट्रस्ट जो है एग्जाम्पशन लेता है 11 के अंदर और 12 के अंदर, तो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 विल नॉट बी अलाउड। अगर ट्रस्ट ऑलरेडी एग्जाम्पशन ले रहा है 11 एंड 12 की, तो जो एग्जाम्पशन 10 में मिलती है वो जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी। बट दो एक्सेप्शन है, 10(1) वाली यानी कि एग्रीकल्चर इनकम आती है 10(1) में, और 1023(c) वाली जो है वो दो एक्सेप्शन है। अगर आप 11 और 12 की एग्जाम्पशन, अगर आप 11 और 12 की एग्जाम्पशन ले रहे हो तो आपको 10 वाली नहीं मिलेगी। बट इसमें दो एक्सेप्शन है, एक तो 10(1) यानी एग्रीकल्चर इनकम और एक 1023(c). वो क्या है, लेट्स डिस्कस। Provided that registration of trust will become inoperative from the date on which trust or institution is approved. Provided that registration of trust will become, जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला था वो इनऑपरेटिव हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023(c) 410, 1023(c)(5), 1023(c)(6), 1023(c)(6)(a, or notified under section 1046(a) or 1023(e)(8), 1023(e)(d) and 1046(b, or the date on which this proviso has come into force, whichever is later. Now moving, that is section number 12(a), condition for availing exemption under section 10,
12, 1023C. Trust shall be registered होना चाहिए under section 12AA, 12AB, 1023C, 4, 5, 6, 6A. From 1st October 2024 onwards, trust shall be registered under section. अब पहले तो क्या होता था कि ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड होता था 12AA में, 12AB में, 1023C में, बट 1 अक्टूबर 2024 के बाद ऑनवर्ड्स ट्रस्ट शैल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, या तो वो 12AA में ही रजिस्टर्ड होगा या 12AB में ही. एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन इज गिवन. एग्जाम्पशन मिल जाएगी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी. इफ टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्पशन इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, then trust has to submit audit report at least 1 month prior to the due date of return filing date. अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट आपको सबमिट करना होगा ऑडिट रिपोर्ट. ट्रस्ट शेल फाइल रिटर्न बिफोर ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 139(1) एंड 139(4), नॉट 139(8). ट्रस्ट को जो है आपने रिटर्न फाइल करनी होगी बिफोर ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 139(1) वाली और 139(4) वाली. सेक्शन 13(1). अब हम आ जाते हैं सेक्शन, तो हमें ये पता है कि हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 11(1), 11(2), 11(3). उसके बाद अब हम ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 13(1), एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11(12) नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस. 13(1) बोलता है कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11(12) नॉट अवेलेबल होगा इन द फॉलोइंग केसेस. द एग्जाम्पशन ऑफ ट्रस्ट शैल नॉट बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस. 13(1) एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11(12) नॉट अवेलेबल. सेक्शन 13(1) ये बताता है कि इन सेक्शंस में कि जो आपको एग्जाम्पशन मिलने वाली थी 11-12 वो नहीं मिलेगी. 13(1) ये बताता है कि जो 11-12 है वो उसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, आपकी इनकम जो है फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट वो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस वाले से है. इनकम फ्रॉम ट्रस्ट एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट कम्युनिटी, अगर आपकी इनकम जो है फ्रॉम ट्रस्ट एस्टेब्लिश आपने किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए किया है तो भी आपकी इनकम जो है तो भी आपको 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड इनकम ऑफ ट्रस्ट इंश्योरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड अंडर सेक्शन 13(3), अगर आप कोई रिलेटेड पर्सन है और उस वजह से जो भी मतलब 13(3) के कंडीशन में आते हैं उस वजह से हो तो भी नहीं मिलेगा. फंड इन्वेस्टेड इन एनी मोड्स अदर देन 11(5), अगर आपने फंड इन्वेस्ट कर दिया है इन एनी मोड अदर देन द मोड स्पेसिफाई इन 11(5) तो भी आपको जो है 11-12 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी. 13(1) हमें ये बताता है कि 11-12 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट, जो इनकम है फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए है, इनकम फ्रॉम ट्रस्ट एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट, इनकम ऑफ ट्रस्ट इंश्योरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन रेफर्ड अंडर सेक्शन 13(3) रिलेटेड पर्सन, या फिर 11(5) के सेफ मोड्स में आपने नहीं किया है. पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 13(3), एम्प्लॉय जो है वो रिलेटेड पर्सन में कवर नहीं है तो एम्प्लॉय के लिए अगर कुछ है तो फिर ये डिनाइड नहीं करेगा. पर्सन रेफर्ड इन 13(3) में कौन कौन से पर्सन आते हैं? ऑथर और फाउंडर ऑफ ट्रस्ट. कौन कौन से पर्सन आते हैं? ऑथर और फाउंडर ऑफ ट्रस्ट. मेंबर ऑफ एचयूएफ इफ फाउंडर डोनर इज एचयूएफ, मेंबर ऑफ एचयूएफ आते हैं अगर फाउंडर डोनर एचयूएफ है. ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ ट्रस्ट, पीपल हु हैड मेड डोनेशन मोर देन 50,000, पीपल जिन्होंने डोनेशन किया है 50,000 से ज्यादा, या फिर रिलेटिव ऑफ एनी अबव, एनीवन अबव, या फिर किसी का रिलेटिव होगा तो भी ये सारी चीजें जो है वो हमारी अकॉर्डिंगली पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 13(3) क्या है? ऑथर और फाउंडर ऑफ ट्रस्ट, मेंबर और एचयूएफ इफ फाउंडर और डोनर इज एचयूएफ, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ ट्रस्ट, people who have made the donation more than 50,000 and relative of anyone above. If education medical facility is given to above referred person, then value FMV of such a service shall be treated as income of the trust. 11(1)(a), capital gain is deemed to be applied for charitable purpose if new asset is purchased on transfer of old asset. Capital gain कैसे? New asset आपने purchase किया, old asset आपने transfer किया है. If all net consideration is utilized fully exempt. If net consideration is partially utilized, cost of new asset minus cost of old asset shall be exempt. 11(5) safe modes are basically government securities. 11(5) के सेफ मोड्स में क्या आता है? बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स आते हैं. स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू रेट द लीस्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इन पेज नंबर 10.52 ऑफ आईसीए के स्टडी मटेरियल में दे रखा है.
Now moving, that is anonymous donation. It is very important part. So anonymous donation, that is 115 BBC, will be taxable at the rate of 30%. All anonymous donation is not taxable at 30%. Some amount is deducted, for example 5% of total donation or 1 lakh, whichever is higher. तो वो उतना अमाउंट जो है वो तो आपका जो ऑल डोनेशन जैसे कि कॉर्पस डोनेशन होता है एनोनिमस एंड गवर्नमेंट ग्रांट के साथ आ जाएगा. एन एनोनिमस डोनेशन रिसीव बाय होली रिलीजियस ट्रस्ट नॉट टैक्सेबल. अगर एनोनिमस डोनेशन अगर रिसीव होता है बाय होली रिलीजियस ट्रस्ट, अगर एनोनिमस डोनेशन होली रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा. द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम एनोनिमस डोनेशन, दिस इज एडेड विद द नॉर्मल डोनेशन एंड इट इज टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट्स. Section 115 BBI, that is tax on specified income. It will be taxed at the rate of 30%. Following specified income are taxable at 30%. Income accumulated or set apart in excess of 15%, where such accumulation is not allowed under any specific provision of the IT Act. Deemed income on violation of use of accumulated income under section 11(3). Use for some other purpose, अगर आपने जो है मतलब किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया या डोनेट कर दिया किसी और ट्रस्ट को या फिर अनअप्लाइड कर दिया तो 15% से वो टैक्सेबल हो जाएगा. Deemed income on account of deemed application provision 11(1)(b). Not able to apply income in this year, gave declaration to AO that we will apply in the next year or year of receipt but could not apply. Any income applied for the benefit of a specified prohibited person relative under section 13(1). Income which is not deposited invested in the safe modes of 11(5). Income from property held by trust to promote international welfare. If income is applied for charitable purpose in India, not a specified income. If income is applied for charitable purpose outside India, specified income हो जाएगी. Then come, that is 11(10). Calculation कैसे करेंगे हम income in case of certain violation. In case of following violation where commercial purpose, जैसे commercial receipt ज़्यादा हो गई 20% of total receipts in case of advancement of any other object of general public utility, or prescribed books of account not maintained, or books of account not audited by the trust before the specified date, return not filed before the due date of before the due date under section 139(1) and 139(4). The income shall be computed in the following manner. Condition for allowance of expenditure and disallowance. Disallowance क्या, कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड. डिसअलाउंस ऑफ 40A IA की हम बोलते हैं कि टीडीएस ने डिडक्ट किया है. 40A 3A की पेमेंट जो है 10,000 से ज़्यादा कर दिया या फिर जो पेमेंट है लास्ट ईयर का वो 10,000 से, तो इनकम हो जाएगी. नो डिडक्शन अलाउंस सेट ऑफ लॉस शैल बी अलाउ अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट. रेवेन्यू, फिर कंडीशन फॉर अलाउंस, क्या कंडीशन है फॉर अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउ. Such expenses not incurred out of the closing corpus balance of preceding previous year. Such expenditure is not from any loan and borrowing. Where cost is already applied, depreciation will not be applied. अगर cost already applied है तो depreciation allow नहीं करेंगे. And such expenditure is not in the form of any contribution and donation to any other person. Then आता है हमारा Section 12AB. Then comes Section 12AB. New procedure of registration with effect from 1st April 2021. CIT, PCIT on receipt of application can give registration in different situation, without inquiry and with inquiry. First time applicant, provisional registration who have not commenced activity. Provisional registration मिलेगा अगर आपकी activities ही commence नहीं हुई तो आपको provisional registration मिलता है. अगर आपका existing trust है 12A या फिर 12AA वाला, registration होगा in a section 12AB. तो अगर आपका existing trust है 12A और 12AA वाला तो registration होगा in 12AB. और अगर आपने first time applicant से provisional registration मिलेगा अगर आपने कोई activity commence नहीं की. इंक्वायरी के साथ सीआईटी में कॉल फॉर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ ट्रस्ट, कंप्लायंस ऑफ एनी अदर लॉ बाय ट्रस्ट. फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट हु हैज कमेंस एक्टिविटी प्रोविजनल टू फाइनल, उन्हें प्रोविजनल से फाइनल मिल जाएगा. री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आफ्टर 5 years. ट्रस्ट अडॉप्टिंग मॉडिफिकेशन, द ट्रस्ट इन ऑपरेटिव अंडर सेक्शन 11(7). उसके बाद हम ये बोलते हैं जितने भी एप्लीकेशंस होगी अंडर सेक्शन 12AA pending on 1421 shall be deemed to be applied under section 12AB as new application. जो भी application pending थी 1421 को
12 AA में उसे कंसिडर किया जाएगा एज अ न्यू एप्लीकेशन अंडर 12 AB. आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ही कैन आइदर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो भी ग्रांट हुआ होगा अंडर सेक्शन 12AB कैन बी कैंसिल इन द फॉलोइंग कंडीशन. The CIT PCIT notice occurrence of one or more specified violation during any previous year. The CIT PCIT has received a reference from AO under second proviso of section 143(3) for any previous year to withdraw approval of trust. Case has been selected as per risk management strategy of CBDT for any previous year. What will be the procedure क्या होगा of cancellation का? To satisfy himself, CIT, PCIT call for such document or information or make such inquiry as he thinks necessary. If he is satisfied that one or more specified violation took place after giving the opportunity of being heard, he shall cancel the registration for that previous year or all subsequent previous year. If he is satisfied that a specified violation has not taken place, he shall refuse to cancel the registration by passing an order in writing within 6 months from the end of quarter in which the first notice is issued by the CIT PCIT. CIT PCIT shall forward a copy of the order to the AO and the trust. Now, what is the meaning of specified violation? Any income from property under trust has been applied other than for the object of a trust or institution. The trust or institution has income from PGBP which is not incidental to the main object or separate books of account. हम बोल रहे हैं कि अगर एनी इनकम, अगर कोई भी इनकम होती है फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट हैज बीन अप्लाइड अदर देन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, स्पेसिफाइड वायलेशन कैसे हो जाएगा? कोई भी इनकम है फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट, अगर आप उसे अप्लाई कर रहे हो अदर देन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के अलावा, द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी व्हिच इज नॉट इंसिडेंटल टू द ट्रस्ट के पास इनकम है पीजीबीपी जो कि इंसिडेंटल नहीं है टू द मेन ऑब्जेक्ट एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड बाय सच अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन. The trust or institution has applied its income for private religious purpose. The trust or institution has applied its income for the benefit of any particular religious community or caste. Any activity being carried out by the trust or institution is not genuine, is not being carried out in accordance with the conditions. The trust or institution has not complied with the requirement of any other law. The application for registration is not complete and contains a false or incorrect information. Then comes section number 1023C. Income of certain university, hospital, educational institution. 3AB, 3AC. University, hospital and other education institution wholly or substantially financed हो रही by government. Government grant मिल रही है more than 50% से ज़्यादा. Which exists solely करिए for income fully exempt हो जाएगी from tax, medical और education purpose which is not for profit. उसके बाद यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच एग्जिस्ट सोनली फॉर एंड देयर एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट आर अप टू 5 करोड़, इनकम फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी. मेडिकल पर्पस है, एजुकेशन पर्पस है, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस है. देन कम्स द फर्स्ट रीजन. Any fund, trust, institute registered for religious and charitable purpose approved by the CIT, which exists solely for the medical and the educational purpose and not for profit. Income exempt subject to certain conditions same as section 11 and 12. तो 1023C में बेसिकली क्या लिखा है, जैसे कि यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस होती है बाय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे कि मोर देन 50% हो, विच एग्जिस्ट सोली फॉर इनकम, वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी इफ इट इज फॉर मेडिकल और फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट. यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, अदर एजुकेशनल जिसकी रिसर्च जो है अप टू 5 करोड़ है एंड तो मेनली ये है. उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, सेल्फ कंप्लाइंट डिजाइन. Trust registered under first design will be transition into second design. Trust registered under first design prior to 1/10/24 shall continue to operate under their current approval until expiration. After that, they will transition to the second design. No new application under first design shall be accepted after 1 October 2024. उसके बाद कुछ टाइम लिमिट्स है तो वो हम फर्दर कभी डिस्कस करेंगे. एंड देयर इज एग्जिट टैक्स है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एक्रेडिटेड इनकम होती है जहाँ पे आप फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, बुक वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज कंसीडर करते हो.
उसके बाद यू विल MMR से हम टैक्स करते हैं 30 + 12 + 4, that will be the accreted income under section 115 TD. तो that we will discuss someday later. तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है चैरिटेबल ट्रस्ट का कि बेसिकली क्या है, सेक्शन 10 क्या है, 10 10 में कौन सी इनकम अलाउ है, 10(1) वाली है, 10 एक और कौन सी है, उसके अलावा 11 क्या है, 11(1) क्या है, 11(2) क्या है, 11(3) क्या है, 13(1) क्या है, 13(3) क्या है, रिलेशन क्या हो रहा है, स्पेसिफाइड इनकम क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन क्या है, 1023C क्या है, कहाँ पे, मतलब ये जो मेनली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो है. I have obviously I have taken the reference with some faculties which I have already mentioned in the earlier part, so hope that you may find this meaningful at the end.